4 P's of strategy में first one is perspective, second position, perspective, second है position, third है plan, and fourth one है pattern. Perspective, positions, planning and pattern. ठीक है, क्या ये 4 P's of strategy? See, 4 P's of strategy means service strategy. Strategy means service strategy. 5 life cycle phases of service, right? 5 life cycle phases of service ना. First step क्या है उसका? First phase सर्विस स्ट्रेटेजी है, सेकेंड फेज डिजाइन है, थर्ड फेज सर्विस ट्रांजिशन है, फोर्थ फेज सर्विस ऑपरेशन है और फिफ्थ वन कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट है. तो ये कॉन्सेप्ट में वी हैव टू सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी. क्या देख रहे हैं हम लोग? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज क्या? 4 P's ऑफ स्ट्रेटेजी ओनली. दैट मीन्स क्या? ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी है. ओके, तो पर्सपेक्टिव मीन्स सी स्ट्रेटेजी फेज में व्हाट वी आर डूइंग, स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे हैं. सर्विस स्ट्रेटेजी फेज में देयर आर 4 P's. कौन से? पर्सपेक्टिव, पोजीशन, प्लान एंड पैटर्न. ओके, तो सी व्हाट इज सर्विस स्ट्रेटेजी फेज? What we are defining in service strategy phase? See, in service strategy we are focusing on how to design, implement, testing, development. Planning is done. Okay, planning जो है कहाँ पे हो रहा है? सर्विस स्ट्रेटेजी फेज में. And perspective means see vision. ठीक है, vision and mission of the organization. Perspective means describe the vision and mission of the organization. Means aim क्या है? What is the aim of the organization? What is the goal? Right? What is the agenda? Objectives. कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. So we can say that perspective क्या है? It describes the vision and direction of the organization. ठीक है. See, then in perspective, what we will see? Business of the organization. Okay, it understands how the business of the organization, that means how we interact with the customer, means how we are going to interact with the customer, what are the requirements of the customer. ये कहाँ पे आएगा? Perspective में. See, अगर take an example, अगर मैं पूछ ली whether the exam should be conducted in online or offline mode, what is your perspective about it? क्या पूछ रही मैं तुमसे? फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इसका? ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑफलाइन होना चाहिए? ऑफलाइन होना चाहिए. ये पर्सपेक्टिव है. क्यों? क्या रीजन है ऑफलाइन होना चाहिए? जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगा. ऑनलाइन वालों को ज्यादा ये okay, they are giving less priority to online students. Okay, that is your perspective, right? Then सालिम वाला होगा नहीं ऑफलाइन, ऑनलाइन होना चाहिए. अरे सालिम नशरा का चलो अलग होगा, ऑनलाइन होना चाहिए. तो सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, राइट? एवरीवन हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ऐसा अभी मेरा भी फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग कि ऑनलाइन होना चाहिए. सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. ओके, तो पर्सपेक्टिव में क्या करना है? इट अंडरस्टैंड्स how the business of the organization means how we are going to interact with the customer according to their perspective. According to their perspective, how to interact with the customer. Okay, and how its service will be provided. How to interact with the customer according to their perspective, and which type of service should be provided to the customer. Perspective के according to the perspective, we will deliver the service to the customer, right? Then next क्या है? पोजीशन. See, पोजीशनिंग क्या करें? सर्विस स्ट्रेटेजी फेज में वी आर फोकसिंग ऑन सर्विस स्ट्रेटेजी फेज, राइट? तो पोजीशन मींस, पोजीशन refers to the attributes and capabilities. Position refers to the attributes and capabilities that the service provider has. पोजीशन का मीनिंग क्या है? attributes and capabilities that the service provider has. See,
डेफिनेशन लिख लो, अदरवाइज डिफिकल्ट होता है समझना. पोजीशन refers to the attributes and capabilities that the service provider has that sets them that sets them apart from their competitors. See, in service strategy phase में we will see what are the different types of attributes and capabilities are available. कितने कौन से attributes और capabilities service provider के पास है. क्या देखेंगे इसमें? Attributes and capabilities that a service provider has. क्यों देखना है ये? Because competitors है market में, right? ठीक है. So to apart from their competitors, मतलब उनसे कुछ डिफरेंशिएट होने के लिए, to apart from the competitors, service provider will check the position of attributes and capabilities. इसका position check करेगा service provider. Service provider will check the position of attributes and capabilities. Why they will check the attributes and capabilities? अगर if they will not check तो क्या वो competitors जो है उनको लोग नहीं कर पाएंगे? नहीं. ओके, तो सी attributes check करना, capabilities check करना में, what are the attributes means what are the components, what are the requirements to deliver this service. Attributes में यही हुआ ना, whether we are having the hard disks or not, enough employees are there or not. ठीक है, ये सब attributes हो गया. Capabilities में क्या आएगा? कितनी कैपेसिटी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल, समझो एक शॉप है. ठीक है, तो 500 उनका डिमांड ये है, दे नो दैट 500 पिज्जा डिलीवर करना है उनको पर डे. इतना कस्टमर का डिमांड होता है डेली. तो 500 पिज्जा के अकॉर्डिंग दे वांट, अकॉर्डिंग टू दैट इतने कैपेबिलिटी भी होना चाहिए. मीन्स इतना, फॉर एग्जाम्पल इतना माइक्रोवेव ओवन होना चाहिए 4 और 5, ये कैपेबिलिटीज हो गए ना. फिर उतने एम्प्लॉय होना चाहिए उनको हैंडल करने के लिए. ये सब कैपेबिलिटीज में आ जाए. कैपेसिटी कितना है, रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कितना कैपेसिटी. तो सी पोजीशन में क्या चेक करना है? पोजीशन रिफर्स टू द एट्रीब्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है, दैट द सर्विस प्रोवाइडर हैज, that sets them apart from the competitors. अगर एट्रीब्यूट्स है, कैपेबिलिटीज है, उसी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से हाँ डिफरेंशिएट हो सकते हैं. ओके, नाउ सी पोजीशंस जो है सिर्फ एट्रीब्यूट्स और कैपेबिलिटीज पे नहीं होता डिपेंड. पोजीशन could be based on value और लो कॉस्ट आल्सो. वैल्यू भी डिफरेंशिएट करेगा तुम्हारा कितना पोजीशन है सर्विस का. तो वैल्यू मींस व्हाट इज वैल्यू? पोजीशन बेस्ड ऑन वैल्यू और लो कॉस्ट आल्सो. वैल्यू मींस क्वालिटी. वैल्यू मींस क्वालिटी. क्वालिटी भी एक मेन इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंशिएट करेगा कॉम्पिटिटर से. तो पोजीशंस कुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू और लो कॉस्ट. ओके, देन पोजीशन इस पे भी बेस्ड है नॉलेज ऑफ ए कस्टमर एनवायरनमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी. नॉलेज ऑफ ए कस्टमर एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री वेरिएबल्स, इस पे भी पोजीशन डिपेंड करता है. नोट डाउन कर लो, नॉलेज ऑफ ए कस्टमर एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री वेरिएबल्स. नॉलेज ऑफ ए कस्टमर एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री वेरिएबल्स. ऑनलाइन स्टूडेंट साइमल्टेनियसली तुम लोग भी लिखा करो. जितना लिखोगे उतना अच्छा है अभी, क्योंकि अभी 2 इयर्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन चला गया. नॉलेज ऑफ ए कस्टमर एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री वेरिएबल्स. सी इसमें ये बोल रहा है कि पोजीशन नॉलेज कस्टमर एनवायरनमेंट पे भी नॉलेज. कस्टमर एनवायरनमेंट मींस कस्टमर के नॉलेज पे भी पोजीशन बेस्ड करता है मैटर. सी कस्टमर का नॉलेज मींस अगर कस्टमर को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कोई साइट पे, तो उनका कैसे नॉलेज गेन होगा वो साइट के थ्रू? अच्छा नॉलेज उनको गेन हो रहा है. अगर उनको मतलब इजी टू एक्सेस नहीं है इंटरफेस, कोई भी एग्जांपल हो अमेजन और फ्लिपकार्ट, अगर उनका साइट इजी टू एक्सेस नहीं है, उनके प्रोडक्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, रिटर्न और रिफंड करने के टाइम पे देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, दे आर गेटिंग डैमेज प्रोडक्ट कस्टमर्स, तो क्या होगा? अच्छा नॉलेज मिल रहा है उनको. नॉलेज अच्छा गुड नॉलेज दे विल शेयर विद अदर पीपल, नहीं करेंगे. तो पोजीशन किस पे बेस्ड होगा? नॉलेज पे भी बेस्ड. किसके नॉलेज पे? कस्टमर की. अभी देखो कल ही मैंने पहली बार मिस्टेक कर दी है. स्नैपडील पता होगा तुम लोगों को? ठीक है, स्नैपडील तो वैसे मैं यूज नहीं करती हूँ, अमेजन और फ्लिपकार्ट ही मोस्टली.
तो पहली बार मैंने ऑनलाइन मतलब क्लोथ परचेज कर ली फर्स्ट टाइम। ऑनलाइन में लेती भी नहीं वैसे भी, ऑफलाइन लेती। तो उसमें क्या था, 2 प्रोडक्ट था, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट क्या था, दोनों को प्रोडक्ट का मैंने पे कर दी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है, रियल बता रही हूँ, कैश ऑन डिलीवरी था, दोनों का मैंने पे भी कर। तो मुझे लगा कि वो एक ही पैक है, जो रैप था वो एक ही पैक है। तो मुझे लगा, मैंने बोली जो कस्टमर जो बॉय था, डिलीवरी बॉय, कि उसमें एक ही क्लोथ है, लग रहा है मुझे टच करने में। बोला नहीं, एक ही पैक में 2 है। ठीक है, एक ही पैक में 2 कौन ओपन करेगा। तो फिर वो चला गया, फिर ओपन करे तो एक ही है, ठीक है। तो फिर रिफंड करने के टाइम पे क्या हो रहा है, एक मिनट check करती हूँ। मुझे तो लगता है गया ही है वो। तो रिफंड करने के टाइम पे क्या आता है, वो रिटर्न रिक्वेस्ट क्लोज्ड, ठीक है। मतलब वो क्या हो गया रिफंड का, मतलब नहीं 24 आवर्स के अंदर उन्होंने क्लोज कर दिया, तो वापस हम लोग इनिशिएट नहीं कर सकते। फिर वो मैंने चैट बॉक्स के थ्रू चैट वेट करके एक अंडरटेकिंग फॉर्म था, तो वो फिल करना है, विद इमेजेस भेजो। तो मीन्स एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि इतना अभी मैं स्नैपडील से परचेज करूंगी दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, तो मेरा एक्सपीरियंस बैड हो गया, राइट, ये एग्जांपल। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा प्लानिंग है, ओके। तुम लोग भी नहीं करोगे क्या अभी, ऐसे ही हो। हाँ, तो फिर स्नैपडील सही नहीं है, स्नैपडील पर ट्रस्ट मत करो। और स्नैपडील अच्छा साइट है ना, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, स्नैपडील अच्छा साइट है कि नहीं। मैं यूज नहीं करती, पहली बार मैंने यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहां से जो टप्परवेयर के टिफिन जो आते हैं ना, वो ठीक है, वो सब ले रहा ऑनलाइन। पर इसका पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, देखते क्या होता है, मेल तो की मैंने। ऑनलाइन ये मत करो, कपड़े कभी नहीं खरीदने का ऑनलाइन, क्वालिटी सही नहीं रहती है उसकी। वैसे मैं ऑनलाइन लेती भी ऑफलाइन ही, फर्स्ट टाइम मैंने देखते क्या है। ठीक है, चलो अभी यहाँ देखते प्लानिंग, थोड़ा चेंज भी हो गया, तुम लोगों को रियल एग्जांपल देखिए। प्लानिंग में क्या होगा, सी प्लानिंग भी कहाँ पे करना है हम लोग को, सर्विस स्ट्रेटेजी की फेज में ही करना है प्लानिंग, ओके। तो क्या प्लानिंग करना है, सी प्लानिंग ऐसा करना है, डेफिनेशन लिख लो, इट गिव्स अ ब्लूप्रिंट, इट गिव्स अ ब्लूप्रिंट, कलर की स्पेलिंग है ब्लू की। It gives a blueprint of how service providers it gives a blueprint of how service providers will transition from their it gives a blueprint of how service providers will transition from their current situation to desired situation. It gives a blueprint of how service providers will transition from their current situation to desired situation. See, blueprint ड्रॉ करना मीन्स क्या है, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, एक आर्किटेक्चर ड्रॉ करना। जैसे अभी कोई बिल्डिंग भी बनता है तो क्या पहले उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है ना, कि कितने रूम्स रहेंगे, विंडो कहाँ पे रहेगा, फ्लोर का डिजाइनिंग, मतलब पूरा उसका डिजाइनिंग रेडी होता है, ठीक। तो ब्लूप्रिंट किसका है, ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ सर्विस प्रोवाइडर विल ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट सिचुएशन टू द डिजायर्ड सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या चल रहा है मेरा, फॉर एग्जांपल सर्विस स्ट्रेटेजी फेज में हूँ, करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन पे। डिजायर्ड मीन्स जो डिजायर्ड है, जो एम है। तो करंट सिचुएशन से जो डिजायर्ड सिचुएशन है, जो एम है, उस पे जाने के लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे। ब्लूप्रिंट मीन्स एक ड्रॉ कर लेंगे आर्किटेक्चर टाइप का, ठीक है, फ्लो डायग्राम टाइप का। तो फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन ये कि आई हैव अंडरस्टूड द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट क्लियरली क्या हम हमें समझ चुके हैं। और मेरा डिजायर्ड सिचुएशन क्या होगा, समझ चुके हैं ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करना, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर कौन से सब मॉड्यूल्स रहेंगे, राइट। देन डेटाबेस कनेक्शंस के लिए कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे। तो यही रहेगा मेरा डिजायर्ड सिचुएशन जो है, ठीक है।
तो करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन में जाने के लिए एक क्या ड्रॉ होगा, एक फ्लो डायग्राम रेडी होगा। जैसे तुम लोग बना रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट में, फ्लो डायग्राम बना रहे हो ना, यूज केस डायग्राम, यूज केस और कौन सा है, एक्टिविटी डायग्राम, और स्टार यूएमएल सॉफ्टवेयर यूज करके, राइट, वही है टाइप का फ्लो डायग्राम। देन एंटिटी डायग्राम बना रहे होंगे, ईआर, एंटिटी रिलेशनशिप। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने एंटिटीज है तुम्हारे डेटाबेस में, ठीक है, कितने टेबल्स है, ये सब वाइवा में हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, पैटर्न। ओके, सी पैटर्न मींस इट डिस्क्राइब्स द रिपीटेबल एक्शंस that the service provider will have to perform. Pattern का मीनिंग ये है, it describes the repeatable actions that the service provider will have to perform. Pattern means it describes the repeatable actions that the service provider will have to perform in order to meet its strategic objective. It describes the repeatable actions that the service provider will have to perform in order to meet its strategic objectives. See, pattern means service strategy phase में we will draw the pattern. किसका pattern? ऐसे एक्शन का जिसको रिपीटेबल हम लोग को परफॉर्म करना पड़ता है। तो कौन से एक्शंस को हम लोग को रिपीटेबल, मतलब ऐसा भी हो सकता है मैं उसको बार बार वो एक्शंस को परफॉर्म करूं। क्यों परफॉर्म करेंगे? ऑब्जेक्टिव जब तक मीट नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव मेट नहीं होता है जब तक हम लोग क्या करना है, वो एक्शंस को रिपीट करना है। ओके, तो ऐसे कौन से उसको हम लोग पैटर्न बोलेंगे। तो याद रखो मीनिंग, पैटर्न मींस रिपीटेबल एक्शंस दैट द सर्विस प्रोवाइडर विल हैव टू परफॉर्म टू मीट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो कौन से ऐसे एक्शन होंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए बनाएंगे पैटर्न। टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग बार बार करना पड़ता है ना हम लोग को, तो टेस्टिंग के लिए एक पैटर्न बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कौन से फॉर्म्स टेस्टिंग करना है, कौन से फील्ड्स टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग का एक रिपीटेबल पैटर्न बन सकता है। और किसके लिए, तो सोचो अभी तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो, वाइवा में पूछ सकते हैं, वाइवा ओरिएंटेड इसमें से भी आ सकता है वाइवा। टेस्टिंग तो दिख रहा है कॉमन, बार बार टेस्ट करते ही हम रिपीटेबल एक्शन। देन अभी सर्विस लाइफ साइकिल तुमको पता है, सर्विस लाइफ साइकिल में 5 फेजेस है, स्ट्रेटेजी, डिजाइन, ट्रांजिशन, ऑपरेशन और CSI। ठीक है, तो हम लोग को इन ऑर्डर ही जाना है ना, पहले डिजाइन स्टार्ट कर देना, देन CSI स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं है, वो स्टेप का मीनिंग एक है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो उसको हम रिपीटेबल एक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? Because see, if any problem arises in the deployment phase, जब तुम डिप्लॉय करोगे कभी भी आ सकता है प्रॉब्लम, आपको डिलीवरी भी आ सकता है कभी भी, तो तुम क्या करोगे, वापस बैठ जाओगे सर्विस स्ट्रेटेजी पे, बिकॉज सर्विस स्ट्रेटेजी में ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियरली डिफाइन हुआ है। तो ये जो सर्विस लाइफ साइकिल टाइप का रिपीटेबल एक्शन क्या है, रिपीटेबल एक्शन है। अगर तुमको टेक्नोलॉजी अपडेट करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करना है, बग्स जो है एरर्स है वो फिक्स करना है, तो क्या करोगे, सर्विस लाइफ साइकिल को ही गो थ्रू करोगे। एक सर्विस लाइफ साइकिल इटसेल्फ क्या है, ये रिपीटेबल एक्शन है, एक टाइप का पैटर्न है। पैटर्न मींस फर्स्ट सर्विस स्ट्रेटेजी, सेकंड डिजाइन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ऑपरेशन एंड फिफ्थ CSI कंटिन्यूअस सर्विस इम्प्रूवमेंट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो फिक्स है इसमें 1 और 2। 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी, कौन से है वो, 4 पर्सपेक्टिव्स नहीं, 4 P's ऑफ सर्विस स्ट्रेटेजी। तो पर्सपेक्टिव है, पोजीशन है, प्लान है और इम्प्लीमेंट। सॉरी पैटर्न है, इम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया, आई 4 P's है।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना तुम लोग भी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सो तो नहीं गए? नहीं मैम। गणेश, हाँ मैम। रंजना, तो हमारा ये रोटेशन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, अगर क्लॉकवाइज होता तो वाई राइट, ये हमारा। okay, now see critical success factors. Give heading critical success factors. Critical success factors. CSF, critical success factors. See, critical success factors जो है, ये जो टॉपिक है तुमको पूरे 5 हर यूनिट में है। ये फर्स्ट यूनिट किस पे बेस्ड है? फर्स्ट यूनिट इज बेस्ड ऑन मींस फर्स्ट यूनिट इज बेस्ड ऑन which service life cycle, which phase of service life cycle. समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? सर्विस लाइफ साइकिल के 5 फेजेस है ना, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। सर्विस लाइफ साइकिल के 5 फेजेस है और 5 यूनिट्स है हमारे आईटीएस में। तो फर्स्ट यूनिट किस पे बेस्ड है? पूरा फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। सेकंड डिजाइन पे, थर्ड यूनिट पूरा ट्रांजिशन के बारे में रहेगा, एंड फोर्थ सर्विस ऑपरेशन और फिफ्थ पे सीएसआई पे। ओके, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है, ये टॉपिक जो है सब यूनिट में तुमको मिलेगा, सर्विस स्ट्रेटेजी में भी, डिजाइन में भी, ट्रांजिशन ऑपरेशन एंड सीएसआई में। ओके, हर एक फेज में क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है। So what do you understand by this term critical success factors? Success factors तो सबको पता होगा। Success factors क्या है? Success factors तो एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस में factors that leads to success, right? Critical क्यों बोल रहे हैं हम? Critical है ये। Critical means जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टर्स अगर होगा ही नहीं सक्सेस फैक्टर्स का, तो इम्पोर्टेंट सक्सेस फैक्टर्स। क्रिटिकल मींस इम्पोर्टेंट सक्सेस फैक्टर, इसलिए इसको क्रिटिकल बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल पार्ट को हम अगर हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट लीड्स टू इमरजेंसी कंडीशन, राइट? यही होगा ना, क्रिटिकल अगर पार्ट को हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा? इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगा। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में ऐसे पॉइंट्स ऐड करना है, अगर वो पॉइंट्स पे तुम फोकस नहीं करोगे तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव द सक्सेस इफ दे विल नॉट फोकस ऑन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ओके, जब भी सी एवरी फेज जो है 5 फेज, सबका एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसमें हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे? सीएसएफ में what are the critical success factors that will lead to the success of the organization. समझ रहे हो ना? ओके, नोट डाउन करते जाइए। they are defined in terms of capabilities and resources. क्या फोकस करना है इसमें? they are defined in terms of capabilities and resources. ये critical success factor है। They are defined in terms of capabilities and resources. लिखे? नेक्स्ट लिखो, अब लिखना ही है इसमें। They are defined by market space levels. They are defined by market space levels. Assignment can be scheduled for later days. They are defined. They are defined by market space levels. The next point लिखो. They are the basis for competition. They are the basis. They are the basis for competition among
And which of the following Rivals. They are the basis for competition among competitors or rivals. You can write. They are the basis for competition among rivals. ये उनके जो दुश्मन लोग हैं, कॉम्पिटिटर है. which of the following can be identified? नेक्स्ट लिखो. फास्ट हो रहा है, लिख पा रहे हो ना? They change over time. They change over time. So they are dynamic, not static. They change over time. So they are dynamic, not static. इसको अंडरलाइन कर दो, डायनेमिक को. They change over time. So they are dynamic, not static. आगे कंटिन्यू करो उसको. They usually require significant investment. They usually require significant investment. They usually require significant investment and time to develop. They usually require significant investment and time to develop. एक लास्ट पॉइंट लिखो अभी. Their value is extracted by. Their value is extracted by. Their value is extracted by combination with other factors. Their value is extracted by combination with other factors. से अभी पॉइंट्स देखो. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में मींस इंपॉर्टेंट सक्सेस के पॉइंट्स कौन से हैं, ओके, दैट विल लीड टू सक्सेस. तो टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, जितना कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज होगा उतना ही सब. इफ यू आर फोकसिंग ऑन कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज तो क्या होगा? सक्सेस होगा गेन. राइट है ना? तो ये मेन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है. कैपेबिलिटीज होना चाहिए हमारे पास और रिसोर्सेज होना चाहिए. देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे तुमने? हाँ, दे आर डिफाइंड बाय मार्केट स्पेस लेवल. सी CSF जो है, इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट स्पेस लेवल आल्सो. मार्केट स्पेस लेवल मींस मार्केट में स्पेस लेवल. यू कैन टेक द टेक्नोलॉजी एग्जांपल. ओके, अगर इफ यू आर डिलीवरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तो क्या होगा? मार्केट स्पेस लेवल पे यू आर फोकसिंग. मार्केट स्पेस लेवल कितना है? मीन्स कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है. शेयर वैल्यू कितना है मार्केट का, ये मार्केट स्पेस लेवल्स हो गए. ठीक है, तुम कितना इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, ये सब क्या हो गया? मार्केट स्पेस लेवल्स हो गया. तो इफ यू आर फोकसिंग ऑन मार्केट स्पेस लेवल्स मीन्स तुम क्या कर रहे हो? यू आर फोकसिंग ऑन दी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. मीन्स सक्सेस फैक्टर्स पे तुम फोकस कर रहे हो. नेक्स्ट क्या है? दे आर द बेसिस फॉर कंपटीशन अमंग राइवल्स. मीन्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है, अगर इफ यू आर फोकसिंग ऑन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स यू कैन डू द कंपटीशन विद योर कॉम्पिटिटर्स. राइट, कॉम्पिटिटर्स के साथ में तुम कंपटीशन कर सकते हो बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द सक्सेस फैक्टर्स. ओके, नाउ सी दे चेंज ओवर टाइम, सो डायनामिक नॉट स्टैटिक. तो ऐसा बोल रहे जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो मैंने एक नोट डाउन कर ली, रिपोर्ट रेडी कर दी मैंने. किसका रिपोर्ट? रिपोर्ट ऑफ CSF. तो वो ऐसा है कि वो हमेशा चेंज ही नहीं होगा. वो बोले डायनेमिक. वो रिपोर्ट कैसे होगा CSF का? इट इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक. इसका क्या मीनिंग है? डायनेमिक चेंज हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स और कैपेबिलिटीज नोट डाउन करी, तो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहेगा ना, होगा कि नहीं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो चेंज हो जाएगा, कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो चेंज हो जाएगा, मार्केट वैल्यू चेंज होने पे चेंज होगा. समझ रहे हो? कि फिक्स कांस्टेंट रहेगा हमेशा 100 इयर्स नहीं. ठीक है, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का हम लोग बोल सकते हैं वो क्या होता है? दे चेंज ओवर टाइम, सो दे आर डायनेमिक नॉट स्टैटिक. ओके, और उसके आगे करेंगे दे यूजुअली रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड टाइम टू डेवलप. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द रिक्वायरमेंट. इन्वेस्ट ही करोगे ना कैपेबिलिटीज में, रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी में, मार्केट की शेयर वैल्यू में, मार्केट में इन्वेस्टमेंट में. इसे क्या करोगे तुम? क्या करने वाले? इन्वेस्टमेंट ही करने वाले हो. ठीक है, सो दे यूजुअली रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड टाइम टू डेवलप. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स रिक्वायर टाइम आल्सो फॉर द डेवलपमेंट. ऐसा नहीं कि वन डे में डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट.
ठीक है, क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू फोकस ऑन द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स टू गेन सक्सेस एंड इट रिक्वायर्स टाइम आल्सो, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आल्सो, फ्री में तो नहीं होगा, राइट? ये लिखे हो लास्ट पॉइंट, देयर वैल्यूज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स। मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में जो वैल्यू डिफाइंड है, लाइक कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज आर डिफाइंड, राइट, कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज आर डिफाइंड, तो वो जो वैल्यू है इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स से भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को एम्प्लॉइज के साथ में, ठीक है, एम्प्लॉइज के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एंड टेक्नोलॉजी के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, देन कस्टमर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओके, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, तो वी कैन से दैट उसका जो वैल्यू है इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्बिनेशन विद द अदर फैक्टर्स। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमने यू हैव डिफाइंड कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज इतना इनफ हो गया, कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो तो कुछ काम नहीं हो सकता है पर उसमें एरर्स होंगे बहुत, okay, now only 3 minutes are remaining na? Okay, we will continue in the next lecture now. Online students answer करो, तो offline तो यहाँ देख सकते हो आंसर कर रहे। 4 P's of service strategy. Who will answer? What are the 4 P's of service strategy? Abhishek, you answer. Abhishek. प्लानिंग, कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, प्लानिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट टू तरन्नुम बताओ 4 P's of सर्विस स्ट्रेटेजी। तरन्नुम, see those who are present raise your hand, huh? Online students, offline नहीं, online students। वो क्यों बोल रही समझ गया मैं तुमको, क्यों रेज है, जो एक्टिव रहेगा सुनता रहेगा रेज करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। जो यहाँ प्रेजेंट है ही कितने, 5 है। अभिषेक, जमीरुद्दीन, जराल, तरन्नुम, सूर्या। तरन्नुम एंड सूर्या नहीं हो तुम लोग प्रेजेंट यहाँ? तरन्नुम, सूर्या, मैम हूँ मैं प्रेजेंट। हैंड रेज करो। तरन्नुम, आस्तिक, शहजाद, सूर्या। अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। आस्तिक, शहजाद, सूर्या। हेलो मैम। आस्तिक हैंड रेज करो। हाँ, आस्तिक प्रेजेंट है। सूर्या,